हेलो फ्रेंड्स। आज का मास्टर डायरेक्शन जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो पहला पार्ट है उसका टॉपिक है मास्टर डायरेक्शन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रॉड। ये मास्टर डायरेक्शन अप टू जून 24 2021 तक अपडेटेड है और इसको मई 2022 में आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इसका जो पहला फर्स्ट पेज या जो कवरिंग लेटर होता है वो इंट्रोडक्शन है इस मास्टर डायरेक्शन के बारे में, लेकिन हम मास्टर डायरेक्शन का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करेंगे सीधा इसका पार्ट 1 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मास्टर डायरेक्शन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रॉड। सेक्शन ए जनरल। A.1 Introduction. Overseas investment or financial commitment in joint venture and wholly owned subsidiaries have been recognized as important avenues for promoting global business by Indian entrepreneurs. Joint ventures are perceived as a medium of economic and business cooperation between India and other countries. Transfer of technologies and skill sharing of results of R&D, access to wider global market, promotion of brand image, generation of employment, and utilization of raw material available in India and in the host country are significant benefit arising out of such overseas investment और financial commitment। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है उसमें बैकग्राउंड में ये दिया रहा है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल, sharing of results of R&D, access to wider global market, brand image, generation of employment, utilization of raw material both in India as well as host countries are significant benefit. Further, they are also important driver of foreign trade through increased export of plant and machinery and goods and services from India, and also source of foreign exchange earning by way of dividend earning, royalty, technical know-how fees and other entitlement on सच इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में एक तो इसका इम्पोर्टेंस बताया और दूसरा ये है कि इसके द्वारा में फॉरेन एक्सचेंज भी हम अर्न करते हैं। आगे, इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ लिबरलाइजेशन विच हैज़ बिकम द हॉलमार्क ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन जनरल एंड फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन इन पर्टिकुलर, the Reserve Bank has been progressively relaxing the rules and simplifying the procedure both for current account as well as capital account transaction. Next, statutory basis. Section 6 of Foreign Exchange Management Act 1999 provides power to Reserve Bank to specify in consultation with the Government of India the classes of permissible capital account transaction and limit up to which foreign exchange is permissible for such transaction. Section 6(3) of the aforesaid Act provides power to the Reserve Bank to prohibit, restrict or regulate various transactions referred to in the sub-clause of that subsection by making regulation. In exercise of the above power conferred under the Act, the Reserve Bank has in supersession of earlier notification number FEMA 19 RB 2000 dated May 3rd 2000 and subsequent amendment thereto issued Foreign Exchange Management Transfer or issue of any foreign security regulation 2004 while notification number FEMA 120 RB 2004 dated July 7 2004. The notification seeks to regulate acquisition and transfer of foreign security by a person resident in India, that is investment or financial commitment by Indian entities in overseas joint venture and wholly owned subsidiaries, as also investment by a person resident in India in shares and securities issued outside India. Overseas investment or financial commitment can be made under two routes, viz. Automatic route outlined in paragraph B.1 and second approval route outlined in paragraph B.8। तो इस पैराग्राफ में इस
जो मास्टर डायरेक्शन है वहाँ पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो ओडीआई के हैं वो दो रूट बताए गए हैं। फर्स्ट है ऑटोमेटिक रूट एंड सेकंड इज अप्रूवल रूट। इसके बाद 8.3 में डेफिनेशंस आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे एक्ट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। Authorized dealers mean a person authorized as an authorized dealer under subsection 1 of section 10 of the act. Alternative investment funds means a fund defined under Security and Exchange Board of India Alternative Investment Fund Regulation 2012. American depository receipt means a security issued by a bank or a depository in United States of America against underlying rupees share of a company incorporated in India. Core activity means an activity carried out by an Indian entity turnover wherefrom constitute not less than 50% of its total turnover in the previous accounting year. So core activity is very important बिकॉज ये आगे जाके हमें ओडीआई के जो प्रोसेस है अप्रूवल है जो एडी बैंक से आरबीआई देता है वहाँ पे कोर एक्टिविटी को कंसिडर किया जाता है। सो मीन्स द कोर एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडियन entity turnover where from constitute not less than 50% of its total turnover। तो यहाँ पे जो कोर एक्टिविटी है एटलीस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका टोटल टर्नओवर ऑफ इंडियन पार्टी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है। means investment by way of contribution to the capital or subscription to the memorandum of association of foreign entity or by way of purchase of existing share of a foreign entity either by capital either by market purchase or private placement or through stock exchange but does not include portfolio investment। तो इस डेफिनेशन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड का अच्छे तरह से वर्णन या डिफाइन किया गया है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल और सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो बेसिकली यहाँ पे दो तरह बताए गए हैं, एक तो आपका contribution to the capital or subscription to the memorandum of association of a foreign entity or by way of purchase of existing share of a foreign entity either by market purchase, private placement or through stock exchange but does not include portfolio investment। so इस definition में portfolio investment को include नहीं किया गया है। फर्दर यहाँ पे नोट एक दे रहे हैं, नोट sponsor contribution from an Indian party to alternative investment fund set up in an overseas jurisdiction including International Financial Service Center in India as per the law of the host jurisdiction shall be treated as direct investment outside in India। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। स्पॉन्सर contribution from an Indian party to alternative investment fund set up in overseas jurisdiction including International Financial Service Center in India as per the law of the host jurisdiction shall be treated as direct investment outside India। तो दोस्तों हमें पता है कि जैसे अभी हमने गिफ्ट सिटी में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, ये प्रोविज़न बेसिकली उसको कंसिडर करने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया है। तो इनफैक्ट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो इन्वेस्टमेंट होंगे उसको भी ओडीआई के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें फर्दर बताएं डोमेस्टिक डिपॉजिटरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन द कंपनीज इश्यूज ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स रूल 2004। EB eligible company means a company eligible to issue Indian depository receipt under rule 4 of the companies issues of Indian Depository Receipt Rule 2004। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है फाइनेंशियल कमिटमेंट की। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट मींस अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी लोन and 100% of amount of guarantees and 50% of performance guarantee issued by an Indian party to or on behalf of its overseas JVs और wholly owned subsidiary।
तो फाइनेंशियल कमिटमेंट, बिकॉज ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट दैट इज़ द अल्टीमेट लिमिट कि जितना एक इंडियन पार्टी होस्ट कंट्री में जेवी और होली ओन्ड सब्सिडरीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी लोन। तो अगर इक्विटी और लोन में है तो उसका जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है। एंड 100% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पे कोई अगर गारंटी या कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं तो उसका भी 100% ट्रीट करना है। बट अगर परफॉर्मेंस गारंटी है तो हमें 50% उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे while calculating the total value of financial commitment in JV और wholly owned subsidiary। इसके बाद है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, means a bond issued by an Indian company expressed in foreign currency and the principal and the interest in respect of which is payable in foreign currency। तो ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड की डेफिनेशन है। इसके बाद है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, मीन्स अ सिक्योरिटी issued by a bank or a depository outside India against underlying rupee share of a company incorporated in India। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है होस्ट कंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिकॉज ओडीआई के एंगल से अगर हम देखा जाए तो जो रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट है वो जो ओडीआई कर रहे हैं वो होस्ट कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो होस्ट कंट्री का मतलब क्या है? तो होस्ट कंट्री मीन्स the country in which the foreign entity receiving the direct investment from Indian party is registered or incorporated। तो बेसिकली होस्ट कंट्री का मतलब है जहाँ पे वो जेवी या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी है जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे, जिसको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया जो है ना उसको मिल रहा है, या फिर इंडियन पार्टी के थ्रू जो उसमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके बाद है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट shall have the same meaning as assigned to it in the company's issue of Indian Depository Receipt 2004। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंडियन पार्टी। इंडियन पार्टी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो फर्स्ट है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और अ बॉडी क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो इट मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी under the Act of Parliament or a partnership firm registered under Indian Partnership Act 1932। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को भी इंक्लूड किया गया है, और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 6 of 2009 मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और wholly owned subsidiary abroad and include any other entity in India as may be notified by the रिजर्व बैंक। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन पार्टी का मतलब है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और अ बॉडी क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और अ लिमिटेड पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 making investment in a joint venture or wholly owned subsidiary abroad and includes any other entity as may be notified by the Reserve Bank। तो इंडियन पार्टी में ये सारी एंटिटी इंक्लूड है, बट इसके आगे प्रोवाइडेड, इसमें एक एक्सक्लूजन है दैट व्हेन मोर देन वन सच कंपनी। यहाँ पे इसको ये एक्सक्लूजन नहीं, इसको फर्दर define and clarify कर दें that when more than one such company or body or entity make an investment in the foreign entity, all such companies or bodies or entities shall together constitute Indian party। तो यहाँ पे ये फर्दर क्लैरिफाई किया गया कि जहाँ एक से ज़्यादा सच कंपनी और बॉडी और एंटिटी इन्वेस्टमेंट करती हैं वहाँ पर ऑल सच कंपनी और बॉडीज और एंटिटी शेयर टुगेदर कंस्टिट्यूट द इंडियन पार्टी। तो उनको सबको मिला के क्या बोलेंगे हम? इंडियन पार्टी। सपोज एक साथ 3 कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो तीनों मिलके इंडियन पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मीन एन इन्वेस्टमेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी
Investment bankers means an investment banker registered with Security and Exchange Commission in USA or Financial Service Authority in UK or appropriate regulatory authority in Germany, France, सिंगापुर और जापान। तो यहाँ पे 4-5 कंट्री को इंक्लूड किया है और उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर की डेफिनेशन बताया कि इट मीन्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकर जो रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन यूएसए, द फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी इन यूके और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर और जापान। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है जॉइंट वेंचर्स की। तो जेवी और जॉइंट वेंचर्स मीन्स अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड registered or incorporated in accordance with the law and regulations of the host country in which the Indian party makes a direct investment। तो joint venture means a foreign entity formed, मतलब उसको वहाँ पे फॉर्म किया गया, रजिस्टर्ड किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री। तो अगर कोई कंट्री जैसे सपोज इंग्लैंड में कोई जेबी या यूके में अगर वहाँ पे कोई जेवी अगर वहाँ पे बना रहा है तो वहाँ पे जो लोकल लॉज एंड रेगुलेशन है होस्ट कंट्री के, उसके अकॉर्डिंग से उसको फॉर्म किया जाना चाहिए जहाँ पे इंडियन पार्टी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगेन ये डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। जॉइंट वेंचर्स मीन्स अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री in which the Indian party makes a direct investment। Then next definition is mutual fund, means a mutual fund referred to in clause 23D of section 10 of the Income Tax Act 1961। Next definition is important definition again, net worth, it means paid up capital and free reserves। so यहाँ पे net worth को define किया गया है because जब भी हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की या फिर जो लिमिट है जो ओडीआई इन्वेस्टमेंट जो किया जा सकता है रेसिडेंट के द्वारा, उसमें वहाँ पे नेटवर्थ का जो डेफिनेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट विच एन इंडियन पार्टी कैन टेक इट इज़ लिंक विद द नेटवर्थ। तो हम ये आगे देखेंगे बट एज ऑफ नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट मीन्स द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। So paid up capital means the capital which is paid up by the shareholder, because when we issue share capital, तो it is first it is issued, then it is subscribed, then it is paid up। तो जितना अमाउंट उस पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट पे कर दिया गया शेयर होल्डर्स द्वारा उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है कि आउट ऑफ योर प्रॉफिट द रिजर्व विच आर नॉट स्पेशली kept or reserved for any particular एक्सपेंडिचर और एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो वो उस तरह के रिजर्व को फ्री रिजर्व बोलते हैं। तो अगेन नेटवर्थ मीन्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रियल इस्टेट बिजनेस। रियल इस्टेट बिजनेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया क्योंकि जो ओडीआई है दैट प्रोहिबिट ओडीआई इन्वेस्टमेंट फॉर रियल इस्टेट बिजनेस। तो रियल इस्टेट बिजनेस it means buying and selling of real estate or trading in transferable development right, but does not include development of township, construction of residential or commercial premises, road or bridges। तो यहाँ पे बोला है कि real estate business means buying and selling of real estate or trading in transferable development right, but does not include development of township, construction of residential or commercial premises and roads and bridges। तो बेसिकली अगर आप केवल रियल स्टेट में अगर जैसे राइट को अगर आप ट्रांसफ़र कर सेल कर रहे हैं या फिर केवल रियल स्टेट को बाय और सेल कर रहे हैं तो उसको रियल स्टेट की डेफिनेशन में कंसिडर किया गया, बट इट डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट्स मीन्स बिल्डिंग ऑफ टाउनशिप, construction of residence। तो basically when you are actually making township construction of residential or commercial premises, roads or bridges, तो ये real estate business की definition से बाहर है। तो simply जब आप it means trading kind of, तो जब आप real estate का trading कर रहे हैं तो
एंड और जो TDR है उसके जो राइट है वहाँ पे आप उसको बाय सेल कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ रियल स्टेट बिजनेस। बट इसको उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया है, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोमाइसेस, रोड्स और ब्रिजेस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज होल्डी ओन्ड सब्सिडरी। इट मीन्स a foreign entity formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulation of the host country whose entire capital is held by the Indian party। तो यहाँ पे जो JV और होली ओन्ड सब्सिडरी की जो डेफिनेशन है, वहाँ पे होली ओन्ड सब्सिडरी में केवल एक लाइन एक्स्ट्रा डो ऐड की गई, दैट इज हुज एंटायर कैपिटल इज हेल्ड बाय द इंडियन पार्टी। तो अगर वहाँ पे कोई भी फॉरेन एंटिटी जहाँ पे फॉर्म की है, रजिस्टर्ड की है होस्ट कंट्री में, लेकिन उसकी एंटायर पेड अप कैपिटल और शेयर कैपिटल जिसको होल्ड किया जाता है इंडियन पार्टी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन या होली, उसको बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। और जिसको शेयर कैपिटल को किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, इंडियन पार्टी के द्वारा। ओके, सो अगेन इस डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड एक बार रीड कर लेते हैं। होली ओन्ड सब्सिडरी मीन्स अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड, registered or incorporated in accordance with the laws and regulation of the host country whose entire capital is held by the Indian party। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है वेंचर कैपिटल फंड्स। ओके, मीन्स अ फंड डिफाइंड अंडर the Securities and Exchange Board of India Venture Capital Fund Regulation 1996। उसके बाद है ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। उसके बाद है सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके बाद है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मीन्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन एज डिफाइंड इन द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। इसके बाद है नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जिनको अलाउ और रेस्ट्रिक्ट किया गया है फॉर द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज द फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड? इट मीन्स अ बॉन्ड expressed in a foreign currency, the principal and interest in respect of which is payable in foreign currency, issued by an issuing company and subscribed to by a person who is resident outside in India in foreign currency and exchangeable into equity share of offered company in any manner, either wholly or partly or on the basis of any equity related warrant attached to that instrument। okay, so इसका मतलब क्या है? तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स मीन्स अ बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। ओके, तो ये फॉरेन करेंसी में इशू होना है। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज पेबल इन फॉरेन करेंसी। तो उस पर जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है वो क्या फॉरेन करेंसी पे में पेबल है। उसके बाद है इशूड बाय एन इशूइंग कंपनी एंड सब्सक्राइब टू बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसी। तो इसको इशूइंग कंपनी ने इशूइंग किया है और किसने सब्सक्राइब किया है? अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इन इंडिया इन फॉरेन करेंसी। तो उसने फॉरेन करेंसी में उसको सब्सक्राइब किया है एंड एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ऑफर्ड कंपनी। तो ये क्या है, इसमें फर्दर है कि एक्सचेंजेबल मतलब इसको बाद में आप उसके साथ में एक्सचेंज कर सकते हो ऑफर्ड कंपनी की इन एनी मैनर, आइदर होली पार्टली ऑन द बेसिस ऑफ एनी इक्विटी रिलेटेड वारंट अटैच टू द डेट इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये बॉन्ड हैं जो फॉरेन करेंसी में इशू हैं, जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फॉरेन करेंसी में पेबल है। किसने इशू किया है? इशूइंग कंपनी ने इशू किया है। सब्सक्राइब किसने किया? अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। और कैसे सब्सक्राइब किया? फॉरेन करेंसी में। एंड एक्सचेंजेबल है दिस बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द ऑफर्ड कंपनी, मतलब जिसने इसको ऑफर किया है इन एनी मैनर, आइदर होली partly or on the basis of any equity related warrant attached to that instrument। उसके बाद है issuing company।
बिकॉज अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा इशूइंग कंपनी वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे इशूइंग कंपनी को डिफाइन किया है, मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 and eligible to issue foreign currency exchangeable bond under these regulation। तो यहाँ पे issuing company को भी define कर दिया गया है। Now next definition is offered company। हमने देखा था वहाँ पे offered company की इक्विटी शेयर की हम बात कर रहे थे, तो ऑफर्ड कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड हुज इक्विटी शेयर्स इज और आर offered in exchange of the foreign currency exchangeable bond। ओके, सो बेसिकली अभी हम इस डेफिनेशन को हमें दोबारा देखना पड़ेगा। जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड की डेफिनेशन थी, उसका मतलब था एक बॉन्ड है जिसको फॉरेन करेंसी में इशू किया गया है, जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फॉरेन करेंसी में पेएबल हैं, इशूड बाय द इशूइंग कंपनी। तो इशूइंग कंपनी कौन है? जिसको कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है और जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू कर सकती है, एंड सब्सक्राइब बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट आउटसाइड इन इंडिया इन फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंजेबल इनटू शेयर ऑफ द ऑफर्ड कंपनी। सो अगेन द ऑफर्ड कंपनी मतलब जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है वो किसके शेयर के साथ में एक्सचेंजेबल है? वो ऑफर्ड कंपनी। और ऑफर्ड कंपनी है means a company registered under the Companies Act 1956 whose equity shares are offered। मतलब अभी जो ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और उसके शेयर्स जिसको एक्सचेंज किया जा रहा है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के साथ में। सो दिस इज द ऑफर्ड कंपनी। उसके बाद है प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन है हैज़ द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन these regulations shall have the same meaning expressively assigned to them in the act। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन को आपको डिफाइन कर दिया, पर जो डेफिनेशन को जिनको डिफाइन नहीं किया गया है, तो जो एक्ट है उसमें अकॉर्डिंगली उसको उनका मीनिंग सेम रहेगा। तो एक्ट की डेफिनेशन में देखा था इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो हमने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो यहाँ पे हमने देखी, एक तो था कोर एक्टिविटी। तो कोर एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एन इंडियन कंपनी टर्नओवर वेयर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल टर्नओवर इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया means investment by way of contribution to the capital or subscription to the memorandum of association of a foreign entity or by way of purchase of existing share of a foreign entity by market purchase or private placement or through stock exchange but does not include portfolio investment। okay, इसके बाद next important definition थी financial commitments means the amount of direct investment by way of contribution to equity loan and 100% of the amount of guarantee and 50% of the performance guarantee issued by an Indian party to or on behalf of its overseas JV और wholly owned subsidiary। इसके बाद हमने जो important definition थी वो host country। host country means the country in which the foreign entity receiving the direct investment from an Indian party is registered or incorporated। उसके बाद इंडियन पार्टी की हमने डेफिनेशन देखी थी, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और अ बॉडी क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन जेवी और होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रॉड and includes any other entity in India as may be notified by the RBI। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी वो जेवी की थी, मतलब दीज आर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मीन्स अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस with the laws and regulation of the host country in which Indian party makes a direct investment। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो नेटवर्क, इट मीन्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। उसके बाद रियल इस्टेट बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल इस्टेट और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट but does not include development of township, construction of residential or commercial premises, roads or bridges।
wholly owned subsidiary का definition important थी, means a foreign entity formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulation of host country whose entire capital is held by the Indian party. उसके बाद जो important definition थी वो थी foreign currency exchangeable bonds का. It means a bond expressed in foreign currency, the principal and interest in respect of which is payable in foreign currency, issued by an issuing company and subscribed to by a person who is resident outside India in foreign currency and exchangeable into equity share of offered company in any manner, either wholly or partly, or on the basis of any equity related warrants attached to the debt instrument. इसके बाद जो नेक्स्ट का हमने डेफिनेशन थी इशूइंग कंपनी, ऑफर्ड कंपनी, बिकॉज दोनों को हमने फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स में हमने यूज़ किया था. उसके बाद है प्रमोटर ग्रुप, हैज़ द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन सेबी गाइडलाइंस 2000. उसके बाद में जो स्पेसिफिक जिनको डिफाइन नहीं किया गया है उनको मीनिंग उनका सेम रहेगा जो हमारा एक्ट में डिफाइन किया है. सो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 1. इसमें हमने डेफिनेशंस को कवर किया है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो फर्दर गाइडलाइंस हैं उनको कवर करेंगे. थैंक यू.